Let me share the disclaimer with you guys. Yeah, so it is a, let's carry on with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It's quite possible that you overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video should be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Still, few students have not joined. Please inform them to join on time. We can continue. We are talking about the fundamentals of investment, the most important aspect in human life, investment, savings, and all those things. One cannot survive without investment. One cannot survive without saving. To have a good quality of life, to have certain security in our life, we need to have savings and investments in our hand. Saving is the one which you keep with you, and the investment is the one where you sacrifice the use of that money and give that money to someone so that someone can earn something from that and pass on something to you. Now, before we move to that, I would like to ask few questions to you guys. How many of you are aware about the stock market? Stock market and how it works? Yeah, nobody knows that particular word was given to that. Can you hear me, class? Am I audible to you? So my simple question is that how many of you are aware about the stock market, share market, and the basics of the stock market? Now, do you guys want to watch one video on stock market? So it will help us to create a good platform. So the video has been, or you can say the case study has been done by Dr. Vivek Bindra. It's a really good one. Personally experienced. I'm having all those certificates of MFI, SEBI, IRDA, and few others.
It's a good one. The basic explanation given by Dr. Vivek Bindra is really very good one. So the video will be of 10 to 12 minutes approx. So you just see that video and then we'll discuss on the same. Because the subject, our first module is consisting of investment alternatives, where you should invest your money. नो डाउट उसके अलावा भी काफी सारी चीजें इन्वेस्टमेंट किया है सेविंग किया है ऑल दोस but it's very base. Main topic is investment alternative, where you should invest your money, whether you should invest in mutual fund, insurance, whether you should purchase equity shares, you should purchase gold, you should invest in real estate, and fact, there are many. You should purchase Bitcoin. There could be many. So before we move to that one, please watch this video. It's of 10 to 12 minutes. Please watch it and be online. आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल पे, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। अगर आप नए भी हैं और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, तो आज बिगिनर्स के लिए भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ बड़ी कमाल की बातें मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप नए भी हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा, आपको जानना चाहिए। ऐसी जानकारी साधारण भाषा में, सरल भाषा में दूंगा। याद है आपको वो 13 साल का छोटा सा बच्चा, जिस समय सारे बच्चे बिल्लू, चंपक, चाचा चौधरी, साबू इसकी कहानियां पढ़ा करते थे, उस समय ये बैलेंस शीट पढ़ता था कंपनीज की। इसका नाम है वॉरेन बफे। सारा पैसा इसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर करके कमाया। पर कैसे कमाया, पहले तो समझिए। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की हैं। आप अगर आज एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7% मिल जाता है, डेट फंड में 6% मिल जाता है। आज रियल एस्टेट और गोल्ड भी पिछले 5 साल से आपको 5% से ज्यादा का रिटर्न नहीं दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट में 4% मिलता है, करंट अकाउंट में तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लोग 12 से 15 से 18% आसानी से कमा पा रहे हैं। अब दो तरह से इन्वेस्ट आप करते हो शेयर मार्केट में, या तो आप म्यूचुअल फंड करोगे इनडायरेक्ट, या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीद लोगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। पर आज जो मैं एक फंडामेंटल पावरफुल ज्ञान देने वाला हूं, उससे पहले मैं शेयर करूंगा कि शेयर मार्केट में लोग फेल होते क्यों हैं। देखिए, पहले समझते हैं भारत के अंदर 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर यही लगभग 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कारण क्या है, लोग इंडिया में क्यों नहीं करते हैं? एक तो लोगों की रिस्क एपेटाइट नहीं है, दूसरा उनको कोई नॉलेज नहीं है, तीसरा कोई डेडिकेटेड कोर्सेज भी नहीं है, और चौथा कई सारे स्कैंडल्स और फ्रॉड हो गए, लोगों को लॉसेस भी हुए। स्कैंडल फ्रॉड तो आपको पता ही है, हर्षद मेहता फ्रॉड हुआ है, केतन पारेख फ्रॉड हुआ है। पर उसी के दौरान यहाँ बड़े अच्छे लोग, बड़े पावरफुल लोग भी जिन्होंने पैसा कमाया है। वॉरेन बफे का तो आपको नाम मालूम ही है, लेकिन एक इंडिया के भी इंडियन वॉरेन बफे, जिनको बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला, इनको इंडिया का वॉरेन बफे बोला जाता है। इनके अलावा रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, ये कई लोगों ने पैसा कमाया है। पहले समझते हैं ये शेयर मार्केट काम कैसे करती है। एक सब्जी मंडी की तरह करती है। आप सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने, उससे पूछते हैं भैया आलू दे दो, कहता है 20 रुपए किलो। आप कहते हो नहीं 15 रुपए किलो। वो कहता है नहीं नहीं 20 रुपए किलो। तो आप कहते हो 15 से ऊपर नहीं दूंगा। बोलते ना तेरी ना मेरी, चल 18 रुपए लगा ले। नेगोशिएशन हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई चलती है इसके अंदर। किसी चीज का बहुत ज्यादा डिमांड है, रेट बढ़ जाएगा उस सब्जी का, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। लेकिन कोई ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है, उसका रेट घट जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। शेयर मार्केट की सब्जी मंडी क्या है? एनएसई बीएसई। सब्जी की सब्जी मंडी क्या है? वो आपको पता है, आपके इलाके में सब्जी की कौन सी सब्जी मंडी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहीं पे जाकर के आप ट्रेडिंग करते हैं, यहां से पता चलता है आपको। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ पे लोग शेयर खरीदते वक्त टिप मांगते हैं। टिप, भाई टिप दे दो, किस में लगा लूं, भाई कौन सा चल रहा है, एक किसकी बाहर चल रही है आजकल। टीवी से टिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइजर से टिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से लेते हैं, इंटरनेट से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, अरे बता दे, कोई अंदर की खबर बता दे।
टिप चाहिए, टिप आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, शेयर मार्केट की टिप नहीं चलती। आप न्यूज को मत ट्रैक करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या न्यूज को मत ट्रैक करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए। इसके अंदर है जी कमाल की बात शेयर करूंगा, बस एक फंडामेंटल वो समझ में आ गया, शेयर मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। आज बात करूंगा पीई की। पीई क्या होता है? ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। पहले समझो निफ्टी क्या है, निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या होता है? ये 50 सबसे बड़ी कंपनी जो हमारे देश की, उन सबको मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव होता है निफ्टी, जो ये 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन करता है कि भाई मार्केट कैसी चल रही है। ये जो टॉप 50 कंपनियां जैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनका समावेश होता है निफ्टी। उसी पता चलता है निफ्टी को देख के कि भाई सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि हल्का परफॉर्म कर रही है। अब निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि कितना रुपया लगाऊंगा मुझको कितना रुपया मिलेगा, साधारण भाषा में आप समझिए बस, प्राइस अर्निंग रेशियो। बस आज मेरा ये टिप पकड़ लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, महाज्ञानी बनने वाले। आज मैं पी की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता लेकिन आपको बताते नहीं है। सुनिएगा दोबारा से, प्राइस अर्निंग रेशियो किसका? निफ्टी का भी होता हो, यानी कि 50 कंपनियों को मिला के, या वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे रिलायंस का हो सकता है, टीसीएस का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए। अब आप इंडिविजुअल शेयर का चेक करने से पहले पूरी की पूरी मार्केट का चेक करो कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, ये आपका मार्केट में अमूमन मार्केट बताता है, पिछले कई 30 40 50 सालों में बताता है कि सबसे नीचे ये रहता है 10 पे, सबसे ऊपर ये रहता है 30 पे। 30 इसका हाईएस्ट जाता है, 10 इसका लोवेस्ट जाता है। 10 से नीचे भी जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन जाता नहीं है। अगर 10 के आसपास है निफ्टी पी, प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का 10 11 12 13 है, ज्यादा पैसा लगा लीजिए, क्योंकि इस समय आपको कम पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर निफ्टी 30 के आसपास है, 25 26 27 28 29 30, अब पैसा बहुत कम लगाइए या मत लगाइए। निफ्टी नीचे है, इन्वेस्ट करिए। निफ्टी ऊपर है, डाइवेस्ट करिए। लेकिन क्या है, लोगों को टिप चाहिए, वो ये बेसिक ज्ञान तो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको क्या यार, ये निफ्टी निफ्टी क्या हो रहा है, ये पीईपी क्या हो रहा है, बताओ भैया, रिलायंस में लगा दूं, पैसा डाल दूं। वही गलती होती है। एक बार किसी एक बड़े महान इन्वेस्टर ने कहा था, आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। कहा था आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। तो किसी ने कहा कि ही इज एक्सेलिंग इन मार्केट। अगले ने कान से सुना, उसको समझ में आया, कह रहा ही इज सेलिंग इन मार्केट। तो फिर बाकियों ने क्या सुना? सेलिंग इन मार्केट। फिर बाकियों ने बोला सेल सेल, सेलिंग इन मार्केट, सेल सेल। सबने बेचना शुरू कर दिया। क्यों? टिप ढूंढ रहे थे। बात कहां से कहां पहुंच जाती है। एक ने क्या बोला, दिस मार्केट इज वर्स्ट, आई एम सेइंग बाय टू द मार्केट। बाय बाय बोल रहा है। किसी ने सुन लिया, कह रहा है सेइंग बाय टू द मार्केट, सेइंग बाय 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 बाय। वो आज बाय बाय वाला तो बाय था, BUY बाय हो गया। इसको क्या बोलते हैं? चाइनीज विस्पर। शुरू में किसी ने किसी को कुछ बोला, जिसने किसको कुछ बोला उसने उसको आगे जाकर के कुछ बोला और बात बदल गई। टिप टिप, ये टिप में सारी गड़बड़ है। देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत आसानी के साथ में, नॉलेज चाहिए, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, धंधे के अंदर बेसिक नॉलेज चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? आसान पैसा चाहिए। हर्षद मेहता का स्कैम भी ऐसे ही हुआ था। वो ACC का सीमेंट था, उस समय उसका भाव मार्केट में 200 रुपए था। इन्होंने उसकी आर्टिफिशियल बाइंग करा दी, खरीदवा 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 खरीदवा, वो 200 से 9000 पहुंच गया। ACC सीमेंट में अंदर कोई दम था ही नहीं। कंपनी के फंडामेंटल कमजोर थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं रही थी, टॉप लाइन बढ़ नहीं रहा था, बॉटम लाइन बढ़ नहीं रहा था, उसका मार्केट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आ ही नहीं रहा था। मार्केट उसके अंदर ना मैनेजमेंट बदली, ना उसके फंडामेंटल कमजोर थे। और ACC को इन्होंने रैली चला दी, उस समय 200 से 9000 पहुंचा दिया। अब जी लोग खरीदो 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 खरीदो, अचानक सब बिकवाया, सब बर्बाद होगा। इसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। आर्टिफिशियली पंप एंड डंप। क्या बोलते हैं? पहले पंप कर दो और बाद में डंप कर दो, ऊपर ले जाके बेच के बाहर निकल जाओ। मैंने 200 से 9000 करा के 9000 पे एग्जिट ले लिया, तो भाई साहब मेरी तो हो गई ना बहुत बड़ी कमाई। आप समझो ना, 1000 का 9000 भी 9 गुना हो गया। देखते ही देखते रातों रात पैसा कमाया इन्होंने। ये तो 200 से 9000 कर दिया, बस यही कहानी है जी। टिप 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 कहाँ मिलती है? रेस्टोरेंट में मिलती है। पहले जाके मार्केट में पीई चेक करो। क्या चेक करो? निफ्टी का, निफ्टी 50 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन है वो। वहां जाके चेक करो, 10 11 12 13 14 पे है पीई। इस समय पैसा लगाने का टाइम है। प्राइस अर्निंग रेशियो को आप थोड़ा फॉर्मूला से समझो, बड़ा सिंपल, कि अगर मार्केट का पीई यानी कि जो निफ्टी का पीई है वो 10 है, तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा। मार्केट का पीई अगर 30 है तो 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना पड़ेगा। अब 1 रुपया कमाने के लिए 10 लगाने चाहिए या 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाने चाहिए? आप खुद ही बताओ भैया। हाँ, सिंपल सी बात है। 1 रुपया कमाना है तो 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे, 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे। अगर 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 10% की कमाई हो गई। 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 3.25% की कमाई हो गई।
तो इसलिए अगर निफ्टी 30 पे है और अगर आपको 3.25% का रिटर्न आना है तो अच्छा एफडी में रखो अच्छा डेट फंड में रखो, कैश पे बैठो। सुनो, कम ऑन क्या, कैश पे बैठो। इन बातों को याद रखिएगा। मैं कोई खाली हवाई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, बिजनेस के फंडामेंटल समझा रहा हूं, बात समझिए। मैं आपको पीछे के कुछ सिनेरियो देता हूं जब मार्केट में बहुत घोर मंदी और मार्केट जब बहुत घोर तेजी आई थी, उन दिनों पी क्या था, वो डेटा आएगा ना तो और आपको समझ में आ जाएगा। 1999 में पी 12 चल रहा था और उस समय एक साल में 105% का रिटर्न आया था। 2003 में भी पी 11 चल रहा था, एक साल में 116% रिटर्न आया था। याद रखिए, 6, 7, 8%, 10% नहीं बोल रहा हूं। अक्टूबर 2008 में मार्केट क्रैश के बाद पी 10 था, बहुत नीचे था। उसके बाद जिसने पैसा लगाया एक साल में 130% पैसा कमाया। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिए जब पी कम था और कैसी कमाई हुई। अब जरा उदाहरण दे देते हैं किस किस महीने में, साल में जाके गूगल पे चेक करिएगा जब पी ज्यादा था तो लोगों का नुकसान कितना हुआ। फरवरी 2000 में पी 28 पे पहुंच गया था। उस समय एक साल में -53% रिटर्न मिला, यानी कि जो पैसा लगाया आधा डूब गया। जनवरी 2008 में भी उस समय पी 28 था मार्केट क्रैश होने से पहले। अभी मार्केट क्रैश नहीं हुई थी, ये सिम्टम था कि पी 28 पे चल रहा है। लगाए जा रहे थे लोग, पैसा लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे, पी ऊपर है। इन्वेस्ट नहीं, डाइवेस्ट। याद रखो, -64% का नुकसान हुआ एक साल के अंदर, यानी कि जिसने जो पैसा लगाया वो आधे से भी कम रह गया। देखिए, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं पैसा। उनको लगता है क्या इस बार कुछ अलग होगा। क्या लगता है इस बार कुछ अलग हुआ, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। सर जॉन टेम्पल्टन ब्रिटिश इन्वेस्टर है, वो कहते हैं 4 दुनिया के सबसे खतरनाक वर्ड है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। अरे भाई, हर बार वही होगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस बार मोदी सरकार है और जी मार्केट आगे जाएगी, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हर बार यही हो रहा है, हो सकता है बदल जाए। तो अगर आपको फिर भी खाज हो रही है ना, खुजली, फिर भी कि पैसा लगाना ही लगाना है तो कम लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। पी ज्यादा है फिर भी आपको लग रहा नहीं मैं तो लगाऊंगा पैसा है जी, तो कम कम करके लगाओ। आप क्या करो, वेट करो, थोड़ा वेट करो, डेट फंड में डाल दो, 6-7% मिल रहा है ना आपको, वहां पे चुप रहो अभी, तब लगाओ पैसा जब पी नीचे आएगा। वॉरेन बफे के जो गुरु थे ना, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्या बोलते हैं उनको, बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं भाई मेरी बात सुन वॉरेन, और शौक हो या स्टॉक हो, माल सस्ते में खरीदना है। कम ऑन, क्या एक सस्ती चीज को महंगे में खरीदना या महंगी चीज को सस्ते में खरीदना, इसी में सारी कहानी है। वेट करो, जब टाइमिंग ठीक आएगी महंगी चीज सस्ती हो जाएगी। किससे पता चलेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो से। इसीलिए वॉरेन बफे कहते हैं मेरा काम 85% सर बेंजामिन ग्राहम जैसा है, जो मेरे गुरुजी हैं, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अच्छा, आपका ब्रोकर, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ये सब बताते क्यों नहीं है आपको? आपके वेल्थ मैनेजर बताते क्यों नहीं, छुपा के क्यों रखते हैं? पहली चीज, ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। और दूसरी चीज, अगर मालूम भी है तो बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपसे जब इन्वेस्ट कराते रहेंगे तो कमीशन मिलती रहेगी, आपसे इन्वेस्ट कराते रहेंगे तो कमीशन मिलती रहेगी, आपसे इन्वेस्ट कराते रहे। ये बड़ा चक्कर है जी। वो आपसे इन्वेस्ट इसलिए करा रहे हैं, उनको कमीशन मिल रही है 2%। वो 2% के चक्कर में इसलिए आपको टिप देता है। टिप कहाँ मिलती है? रेस्टोरेंट में। जिनको मालूम है वो छुपा के रखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़िया हो ही नहीं रहे। मैंने भी अपनी शुरुआत के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी अपने, जब मैं बिजनेस शुरू किया था अपना, और साथ साथ पैसा इन्वेस्ट करता रहा, क्योंकि मैं सेव करता हूं। मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा खर्चा है नहीं, मैं एक शाकाहारी वेजिटेरियन सिंपल आदमी, सिंपल लाइफ जीता हूं और साथ साथ पैसा बचाते रहता हूं। और उसमें मेरे लीडरशिप फंड के पार्टिसिपेंट है, ये भूषण गोड बोले, मैंने इनको, क्योंकि इनका अपना कंपनी था और मैं देखा इनको कहीं अवार्ड्स मिले बीच में, ये टॉप 50 एडवाइजर्स इंडिया के अंदर, उसमें भी जब इनको अवार्ड मिला, वहीं से मैंने इनके जो आर्य मनी, जो इनका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें फ्री सारी एडवाइस देते हैं। इनका अपना मोबाइल ऐप भी है, वहां पे आपसे मैं बता रहा हूं, आप फ्री कोर्स भी करिए जाकर के वहां पे। मैंने क्या बोला, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान अब एक वीडियो में देना थोड़ा कठिन होता है, तो संपूर्ण ज्ञान लेना आपको फ्री में लेना है आपको, तो अब आर्य मनी की ऐप पे जाओ, ऐप पे जाकर के संपूर्ण ज्ञान बाकी का लो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, इसीलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं। आर्य मनी को मैंने ट्रेन किया बिजनेस बढ़ाने के लिए, अब वो फिजिकल से डिजिटल आ गए हैं, इस समय वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐप के थ्रू कर रहे हैं, पहले ट्रेनिंग किया करते थे। वो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर और बाकी भी पीएमएस एडवाइजरी सर्विसेज, कई सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन आपको क्या है, फ्री में कम से कम ट्रेनिंग लेकर के ज्ञान बिल्ड करिए। अब इन्होंने क्या बनाया, गेटवे टू वेल्थ नाम का एक प्रोग्राम बना दिया। लोग आते हैं वहां पे, फ्री में एडवाइस लेते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो उनका पेड कोर्स भी खरीदता है, जिसको नहीं अच्छा लगता, ये नहीं जरूरत है, वो कम से कम फ्री में ज्ञान तो लेते हैं। बेसिकली बात क्या है, सारा प्रॉब्लम ज्ञान क्या है, ज्ञान की कमी है, टिप चाहिए, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है बीच में, क्या कि जी निफ्टी का पी मिलेगा कहां से? आप में से जो लोग चेक करना चाहते हैं रेगुलरली कि इस समय निफ्टी का
पी क्या चल रहा है, कब क्या रहेगा, पहले क्या रहा था, उसके लिए आप एक काम करिए, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सीधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर के देखो, और वहां से नहीं देख पा रहे तो मैं आपको तरीका बताता हूं, arymoney.com उनकी वेबसाइट पर जाइए और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे मार्केट मीटर सेक्शन होगा, वहीं पे आप निफ्टी पी पे क्लिक कर दीजिए। निफ्टी पी पे क्लिक करेंगे, वो सीधा आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ले जा करके आपको निफ्टी का पी दिखा देगा। तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और या फिर arymoney.com से भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये अगर एनएससी की साइट पे आप अपने आप नहीं ढूंढ पा रहे तो यहाँ पे लिंक है, उस लिंक से आप गाइडेड तरीके से पहुंच जाओगे। इनकी लाइफ में ना दो बड़े अच्छे काम हो गए। एक तो ये लीडरशिप फनल में आए, मुझसे इन्होंने आकर ट्रेनिंग किया, मेरे लाइव प्रोग्राम अटेंड किए, वहां से ये फिजिकल से डिजिटल हुए, इन्होंने अपने बिजनेस को स्केल अप किया। और दूसरा, सीएनबीसी आवाज का ऑल इंडिया एडवाइजरी चैंपियनशिप का एक अवार्ड अनाउंस हुआ था, उसमें देश के अंदर टॉप 10 एडवाइजर चुनने थे। वो एक लंबा प्रोसेस था। 2016 में देश के टॉप 10 एडवाइजर्स के अंदर इनका नाम आ गया। वहां से इन्होंने फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम से इकोसिस्टम हमारे बिल्ड करने शुरू किया। अब चैंपियन तो हो गए, लेकिन अकेले थे अभी तक। अब अकेले से बिजनेस को ग्रो करना था, तो अब बाकी हमारी ट्रेनिंग का काम था। इकोसिस्टम की तैयारी हमने कराई, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के इनके चैनल पार्टनर बने, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, वेल्थ के मैनेजर, किसी भी प्रकार का कोई भी वेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, जितने भी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करने वाले लोग थे, वो सब इनके साथ जुड़ने लगे। इनका यूट्यूब चैनल भी ग्रो किया, इनके सारे चैनल पार्टनर भी ग्रो किया, आर्य मनी खुद भी ग्रो किया, और उनका कस्टमर भी ग्रो किया। इकोसिस्टम बढ़ता है तो सबके सब बढ़ते हैं। शेयर मार्केट के संपूर्ण ज्ञान के लिए अगर आपको 20 वीडियोस का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है तो उसके लिए आर्य मनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और उनको फोन लगाइए। उसके लिए मुझको फोन मत लगाइए, लेकिन अगर आपको Yes, student. So, how's that? How's the video? I think it's useful one. Yes, student. Please share your thoughts whether it is useful or not. So in future I can decide accordingly whether to show such videos or not. Am I audible to you? Class, I ask something to you guys. Whether you would like to watch such videos, what are the learnings from that video, tell me. Otherwise, in next session, we'll not show such things. We'll directly go to the syllabus itself only throughout the syllabus. Are you there? Students, are you there? This is Sir. final call. Are you there? Sir. Okay. Yeah, I received all the messages at a time now. Maybe because of network issues. I received all the messages now. So good one. Okay. Now start the basics of investment. When person can invest. See, डायरेक्ट सिलेबस पे नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा बेस बनाएंगे, थोड़ा बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन उसके बाद सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस? तो विवेक बिंद्रा ने जैसे बोला कि पी रेशियो आपको देखना चाहिए, स्टॉक मार्केट है, थोड़ा रिस्की है,
तो अगर रिस्क लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए, सेविंग अकाउंट ओपन करके वहां पे पैसा रख दीजिए। म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं, लेस रिस्की है, फंड मैनेजर के थ्रू, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट, हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए है, तो उसमें आपका बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होगा, दैट यू नीड टू डिडक्ट, वो आपको वहां से डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो पैसे आपके पास बचेंगे, उसमें से सर्टेन मनी जो है वो आपको कंटिजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए अलग रखना पड़ेगा। एंड बाकी की जो एक्सेस अमाउंट है, वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब वो अमाउंट जो है वो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम है। Let's say this is not me only, but this is certain research and surveys, and even bank says that minimum 40 to 50% आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। मतलब अगर 1 लाख की आपकी अर्निंग है, तो उसमें से 40 to 50,000, लेट से 45,000 रुपीज जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगी। इसमें आपके घर में सब चीजें, किराना है, पेट्रोल है, मोबाइल का बिल है, टेलीफोन का बिल देख लीजिए, लैंडलाइन का, डीटीएच का बिल है, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट 45,000 रुपीज। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जो ईयरली आते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, एंड समथिंग लाइक दैट। उसके लिए भी आप 10% अलग से रख दीजिए। कुछ ईएमआई आपके चल रहे हैं, पास्ट ईएमआई है, कुछ अगर आपने घर लिया है तो घर के लिए ईएमआई है, या तो आपका इंश्योरेंस है तो ईयरली इंश्योरेंस का पेमेंट है आपका, आपकी फैमिली का इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, बाइक का, स्कूटर का इंश्योरेंस है, ऐसा कुछ अदर एक्सपेंसेस भी रहते हैं, आप वो भी ध्यान में रख लीजिए। देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, वो भी ध्यान में रख लीजिए। आपके पास कुछ असेट्स है, कुछ मशीनरी है, लाइक वॉशिंग मशीन है, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें भी मेंटेनेंस कॉस्ट तो आएगी आएगी। तो एज एन होल अगर आप सब कैलकुलेट करोगे तो विल स्टैंड अप टू 70%। तो 1 लाख में से 70% जो है वो आपके पैसे चले जाएंगे, रेस्ट विल बी 30%। अब वो 30% जो पैसे आपके बचते हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि उस पैसों का क्या करना है। आपको अपने पॉकेट में रखना है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे, नो डाउट दे ऑल आर ओल्ड जनरेशन, दे यूज्ड टू बिलीव दैट मेरे पास जितने पैसे है ना वो मेरे हैं, सिंपल। ગુજરાતીમાં કહું તો મારી પાસે જેટલા પૈસા છે ને એ મારા છે। बैंक में even if I am having 10 crore rupees balance in my bank account, it's of no use, it's not mine। If I do have 10 rupees in my hand, it's mine। If I do have 10 crore rupees in my bank account, it's not mine। This is what some old generation people believe, and in certain cases they are also right, because of frauds and these things, cheat scams, sarda scams, and lot more scams are there, lot more scams took place। So they precisely, strictly believe that पैसे आपके हाथ में है, आपके घर में है, वही पैसे आपके। सो 30% अमाउंट जो आपके पास बचती है, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। आप फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, आप अलग से एक्स्ट्रा इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, मेडिक्लेम भी ले सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। देर आर मेनी अदर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, तो यू हैव टू डिसाइड। एंड नाउ आपके पास जो 30% पैसे एक्स्ट्रा है, उसके साथ क्या करना चाहिए, ये आप दिमाग में रखिए कि आपके पास 30% पैसे जो है वो एक्स्ट्रा है, तो उन पैसों का क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाई टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे।
इन आर फर्स्ट मॉड्यूल। सो आप अभी ये दिमाग में रखिए कि आपके पास 30% एक्सेस मनी है जो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, तो अब वो 30% कहाँ कहाँ पे आपको कितने परसेंटेज में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको वो 30% पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में लगा देना चाहिए क्लास? वो 30% आपको पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में लगा देना चाहिए कि क्या करना चाहिए? Yes, class. My question is that कि अगर आपके पास 30% पैसे बचते तो क्या वो सभी के सभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे कि क्या करोगे? 20% should be invested in stocks, 50% on stock market, and 15% in gold or real estate. Good one. 10% in FD, some amount mutual fund, and some in SIP. Okay, good. अब ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने एक क्लास में किया था, तो आई डोंट नो बट वो बंदे ने मुझको ग्रेट रिप्लाई दिया कि सर ये सब आप साइड में रखिए, आप वो पैसे जो है ना आप मेरे को दे दीजिए, मैं उसको फाइनेंस कर दूंगा पैसे को 5% 10% मंथली। यस, मंथली। अगर आप उसको 1 लाख रुपए देते हो तो वो पर मंथ आपको 5,000 रुपीज इंटरेस्ट पे करेगा। बट फिर उसमें वो फिक्स नहीं रहता है कि आपने जो 1 लाख रुपया दिया है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा होता है कि आप दे दो एक साथ, फिर वो आपको कट के करके दे देगा, 5,000 के आपको ईएमआई करके वो लौटा देगा। सो ऐसी कोई बातों में मत आ जाना। डोंट गो विद द पर्सनल फाइनेंस। We do have many investment alternatives, authentic investment alternatives. Go with that only. Don't indulge yourself in such personal finance and all those things. Not good. Injurious to our health. So, very good answers. Now, let's start with the module one. Please be online. I am sharing the slides. Okay, class. So, this is module one, or you can say the unit one, investment, environment, and revenues. The basic meanings and concept of investments, investment avenues, savings versus investment, ट्रेडर्स, जो मैंने अभी आपको स्टॉक मार्केट का वीडियो दिखाया ना, वो ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स, गैम्बलर्स, इन्वेस्टर्स।
ये उसका ही पार्ट है, तो वहां पे हम डिटेल में बताएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। Then investment avenues like bank deposit, post office deposit, government saving schemes, public provident fund, national saving certificate, SCSS, and government security schemes, bonds and debentures, equity share market, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी कई सारी अलग अलग स्कीम्स आती है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसमें भी अलग अलग स्कीम्स आती है, यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ईएलएसएस शायद आप लोगों ने सुना होगा, रिटायरमेंट प्रोडक्ट, पेंशन प्लान्स, प्रोविडेंट फंड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आपको इंटरेस्ट या तो रिटर्न जो है वो कम मिलेगा, सेफ्टी 100% रहेगी। T-bills means treasury bills, CP, COD, CBLO, repos, reverse repos. Then आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रेशियस असेट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई म्यूजियम है, वहां पे भी कोई ऐसी चीज है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये थोड़ा अलग है, आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। Financial derivative instruments and new investment avenues like equity traded funds, tips, chips, souvenir gold schemes. So this is our first model. ये हम पूरा स्टडी करेंगे, इसमें अप्रोक्स 11 सेशंस लगेंगे, so please have some patience। हम धीरे धीरे जाएंगे, we are not in hurry, so we'll go होले होले, and होले होले से हवा लगती है, धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। Please be online, I'm sharing the first slide of the unit 1। The fundamentals of investment, unit 1, investment environments and avenues. So here we go. Investment. Yeah, investment. Investment. An investment is the current commitment of money for a period of time in order to derive future payments that will compensate investors for the time the funds are committed, the expected rate of inflation, and the uncertainty of the future payments. In very simple language, in very layman language, the things that we have discussed. Somebody is sacrificing the use of available amount. He gives that amount to someone so that someone can utilize it and earn something from it. And later on, whatever he is on, he passes some of the portion. And this is how the investment works. An investment is the current commitment of money for a period of time, for a certain period, maybe for 3 months. If you have bank FD, minimum 3 months. If you are investing in stock market, maybe for 5 years, 10 years. If it's insurance, maybe 5, 10, 15, 20, 30 years. In mutual fund, in tax saving schemes, minimum 3 years. So when one person is giving money for a certain time period and expect some return on it, expect future payments with some sort of increment in that. So the investment is consisting of the time the funds are committed, कितने टाइम तक आपने उसके साथ जो है तो फंड जो है उन्होंने दिया था। The expected rate of inflation, inflation का रेट क्या है? यहाँ पे expected rate of interest नहीं है, inflation है। inflation का रेट क्या है? inflation आप लोगों को मालूम है ना गाइस? inflation रेट हमारा जो ऑलमोस्ट 4.5 4 और 5 के बीच में जो है वो रहता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई।
आज कोई चीज जो है वो आपको 100 रुपीज में मिल रही है, तो नेक्स्ट ईयर वही चीज आपको 105 में मिलेगी, if you consider it as a common inflation rate. So the expected rate of inflation and the uncertainty of future payments. Nobody knows about the future. आज मेरे पास पैसे है, वो मैं बैंक को दूंगा तो मैं इतना श्योर रहूंगा कि यस वो पैसे मुझे वापस आएंगे, विथ इंटरेस्ट मुझे वापस आएंगे। बट आज मैं जिस बिजनेस में हूँ, मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, देयर इज नो सिक्योरिटी, no security. So uncertainty of future payment. To survive, to sustain, to defend me and my family, I used to invest where the future payments are guaranteed. Because current payments, मेरा जो भी है, उसकी कोई guarantee नहीं. The uncertainty of the future. So that's why the investors can be an individual, a government, or a corporation. एक कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड में भी इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टर इज द वन हु इन्वेस्ट मनी विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं, इन्वेस्टर इज द वन हु सैक्रिफाइस द करंट यूज ऑफ मनी, गिव इट टू समवन एंड एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स ऑन इट। वेरी सिंपल, very layman language. So the investors can be individual, a government, a pension fund organization, or a company itself, like LIC, Life Insurance Corporation. Life Insurance Corporations जो है वो भी पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। So any activity in which money is put at risk for the purpose of making a profit, आप पैसे बैंक में दे रहे हो, रिस्क तो है, बट अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क कहाँ पे ले रहे हो। बैंक में एफडी किया, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, रिस्क ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क कम है। डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, जीरो रिस्क है। सो रिस्क एंड रिटर्न दोनों जो है वो आपको देखना पड़ेगा। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। So any activity in which money is put at risk for the purpose of making a profit, at which is characterized by some or most of the following, like sufficient research has been conducted. सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे आपने sufficient research किया है कि नहीं किया है। The odds are favorable जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, the waves are favorable to you or not. You do have any sort of knowledge about that or not? The behavior is risk averse. आपका behavior कैसा है? Whether you would like to take highest risk, whether you would like to play safe. The behavior is risk averse. A systematic approach is being taken. आप systematically invest कर रहे हो कि भाई चलो सेविंग्स में से 30% बचे तो उसमें से 5% की एसआईपी करूंगा, 5% स्टॉक मार्केट में, 5% गोल्ड में, 5% रियल एस्टेट में, 5% में इमरजेंसी के लिए बचा कर रखूंगा एंड 5% जो है वो मैं अपने सेविंग अकाउंट में रखूंगा। तो सिस्टमेटिक अप्रोच, जब जब मार्केट गिरेगा तब तक मैं वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब जब मार्केट आगे बढ़ेगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सिस्टमेटिक अप्रोच। Then emotions such as greed and fear play no role. Most important, mark this. Emotions, greed, temptation, fear, ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो या तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लालच मत रखिए। लालच बुरी बला है, ऐसा किसी ने बोला था, मैंने नहीं बोला, किसी ने बोला था। तो इमोशंस सच एज ग्रीड एंड फियर प्ले नो रोल, वो नहीं होनी चाहिए। जब भी इन्वेस्टमेंट की आप बात करो तो लालच और डर दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटी इज ऑनगोइंग एंड डन एज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्लान। एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट चालू करो तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट है, दैट इज गुड, बट वो ऑनगोइंग एक्टिविटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट वंस यू हैव इन्वेस्टेड दैट्स इट, नाउ आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनगोइंग होना चाहिए, पर मंथ, पर क्वार्टर, हाफ ईयरली, ईयरली। मोड यू डिसाइड, मोड आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, बट इट शुड बी ऑन गोइंग।
It should not be single time activity. It should be ongoing activity and done as part of long term plan. Long term सोचो आप 5 years, 10 years, 15 years and so on. आप लोगों को शायद मालूम होगा आपके पेरेंट्स ने आप सभी बच्चों के नाम से LIC की पॉलिसी ली होगी मेजोरिटी 90% ने तो ली ही होगी तो वहां पे वो किस लिए लिए कि भाई बच्चे को फ्यूचर में स्टडी के लिए काम आएंगे बच्चों के शादी के लिए काम आएंगे एंड सो इस हिसाब से पूरा प्लानिंग करके वो लोगों ने इंश्योरेंस जो है परचेज किया या तो संभव कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा या तो गोल्ड लिया होगा सो वो फ्रीक्वेंट होगा एक बार गोल्ड लेके रख दिया होगा ऐसा नहीं होगा हर साल 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम गोल्ड लेके साइड में रखा होगा सो दैट फ्यूचर में कोई भी ऐसा हो आपके UG के लिए PG के लिए तो वो काम आएगा मैरिज के लिए भी काम आएगा सो एक्टिविटी इज ऑनगोइंग एंड डन एज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान दूर का सोच के वो प्लान करते हैं देन द एक्टिविटी इज नॉट मोटिवेटेड solely by entertainment or compulsion it is not compulsory to invest and same time it is not a type of entertainment या मेरे को मजा आ गया यार आज मैंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया मैं काफी खुश हूँ आज मैंने शेयर में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया आज मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस का पॉलिसी ले लिया आई एम अमेज्ड आई एम वेरी मच हैप्पी ऐसा नहीं होना चाहिए एंड इवन इट इज नॉट कंपल्सरी यार ये गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया इसलिए मैंने इंश्योरेंस ले लिया ये ऐसा नहीं होना चाहिए so the activity is not motivated solely by entertainment or compulsion it's a rational activity rational where a person uses his brain, his thoughts, and his wisdom. And ownership of something tangible is gold. Something tangible that is money. उसके ऊपर आपकी ओनरशिप होनी चाहिए रियल एस्टेट गोल्ड स्टॉक्स एनीथिंग ownership matters a lot ownership of something tangible is involved in investment a net positive economic effect results and that is return पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट वो रिजल्ट होना चाहिए आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो 100 के 90 हो जाए नहीं आप ऐसा ही एक्सपेक्ट करोगे कि वो 100 के 110 हो जाए 120 हो जाए 200 हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा अगर 110 हो जाते हैं तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक मतलब पैसे आपके बढ़ गए इकोनॉमिक मींस रिलेटेड टू मनी इकोनॉमिक एंड पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे वो ज्यादा हो गया सो अ नेट पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट रिजल्ट इज हाईली अप्रिशिएटेड रिजल्ट जो है आपके पॉजिटिव में होना चाहिए आपके फेवर में होना चाहिए एंड इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वहां पे पॉजिटिव होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए now saving versus investment guys the last slide is clear to you last two slides this and this one is it clear to you any doubts class any doubts okay thank you so now we'll move to the next one is savings versus investment so savings versus investment you can earn interest by putting money in a saving account, but saving accounts generally earn a lower return than investment. Investment have the potential for higher return than a regular saving account.
maybe 3 to 4%. In certain cases, certain banks gives you 6%, like Kotak, IndusInd, and few other banks. तो सेविंग में आपके पैसे आइडल पड़े रहेंगे, जहां पे आपको मिनिमम अमाउंट रखनी है, जहां पे आपको उसके ऊपर मिनिमम रिटर्न जो है मिलेगा. बट इन्वेस्टमेंट हैज पोटेंशियल टू अर्न हायर रिटर्न्स देन अ रेगुलर सेविंग अकाउंट. नॉट, remember, the greater the risk of an investment, the higher potential return or loss of your money. Both the side is possible. Both the side. Greater the risk of an investment. आपने जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर रिस्क ज्यादा है, तो हायर चांसेस है रिटर्न के. अब वो रिटर्न पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दैट टाइम विल डिसाइड. वो टाइम डिसाइड करेगा. बट यस, अगर आपने ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट किया, तो या तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, या तो आपको ज्यादा लॉस होगा. रिटर्न विल बी देयर, बट पॉजिटिव रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम. So saving versus investment, this is the basic difference. Like comparison, the entire comparison for savings and investment. Saving represents that part of the person's income which is not used for consumption. Consumption होगा, but right now it is not used. एक साथ आपकी सैलरी आ गई, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना कि आप वो फर्स्ट डे पे ही आप 45-50% जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग था, वो एक साथ आप खर्च कर दो. तो नहीं होगा. बाकी के पैसे तो आपके सेविंग अकाउंट में ही पड़े रहे होंगे. तो धीरे धीरे आप उसको यूज करोगे. तो सेविंग एक ऐसा पार्ट है जो आपके पास पड़ा रहेगा, आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो. तो सेविंग रिप्रेजेंट्स दैट पार्ट ऑफ द पर्सन्स इनकम व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर कंजप्शन, while investment refers to the process of investing. आपके पास पैसे है, पर वो आपके पास नहीं रखते हो, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो. आप वो पैसों का यूज सेक्रीफाइस करते हो. नहीं, मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा. इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स इन कैपिटल एसेट्स. कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विथ अ व्यू टू जनरेट रिटर्न्स. मेरे को रिटर्न चाहिए. आप अपने घर में कहीं पे भी देख लेना कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10, 15, 20, 25, 50 हजार रुपए पड़े हैं, तो आपने कभी भी अपने पेरेंट्स से ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि ये सेविंग अकाउंट में तो मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं है. बट यस, अगर आपके पेरेंट्स ने 50,000 रुपीज या तो 5,000 रुपीज जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होंगे, या तो कहीं पे एफडी बना के रखी होगी, तो वहां पे वो लोग बोलेंगे कि यस, ये एफडी के ऊपर हमें ये 200 रुपये इंटरेस्ट मिला. राइट? आई थिंक ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. देन पर्पस क्या होगा? सेविंग्स आर मेड टू फुलफिल शॉर्ट टर्म और अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म की कोई रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपने पैसे साइड में रखे. अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपने कुछ बचा के रखा. बट इन्वेस्टमेंट इज मेड टू प्रोवाइड रिटर्न्स एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन. सेविंग से आपके पास पैसे नहीं बनेंगे. सेविंग करने के लिए आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए जो आप साइड में रख सको. बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका एक लॉन्ग टर्म का होराइजन होना चाहिए. अगर आप कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो उसमें रिटर्न ऐड होता रहेगा, एंड लेटर ऑन आपका वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो होगा. कैपिटल फॉर्मेशन मैटर्स अ लॉट. देन सेविंग्स में रिस्क जो है वो लो है, ऑलमोस्ट नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं. रिटर्न भी वहां पे नहीं है ऑलमोस्ट. एंड लिक्विडिटी जो है वो हाई लिक्विडिटी है. आपको पैसा चाहिए 2 मिनट में मिल जाएगा. बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा, एटीएम में जाओ उठा लो, चेक लेके जाओ बैंक से उठा लो. हाई लिक्विडिटी है, बट रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है. बट इन्वेस्टमेंट में डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स. आपका रिस्क जो है वो डिसाइड किया जाएगा. जितना आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा, उस हिसाब से रिटर्न भी रिस्की ही रहेगा. तो डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, रिस्क विल बी डिसाइडेड. देन रिटर्न्स कंपैरेटिवली हाई. डेफिनेटली सेविंग अकाउंट से तो आपको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा. घर में पैसा पड़ा रहेगा, उसके ऊपर तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, बट वो पैसे मार्केट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको
मिलेगा, बट यस लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। आपको ऑन द स्पॉट उसको कन्वर्ट करना है तो नहीं हो पाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस वो हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट। So any doubts for this class? Okay, very good. So we'll keep up to this only, and in the next session we'll go with the traders, speculators, investors, and all those. So that's it for the day. Thank you so much, class. Enjoy your day. Thank you.